Good morning, dear students. How are you? I hope you all fit and fine. This is your physics class, but before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I, Ramadip Kaur, commit to be a vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with physics. Today we will discuss about book exercise of chapter 5, that is light. First one, MCQs. First MCQ, first question, the image will be upright and magnified when the object is located in front of F. जब ऑब्जेक्ट को हम इन फ्रंट ऑफ F रखेंगे, फोकस रखेंगे, देन जो इमेज होगी वो क्या होगी, अपराइट एंड मैग्नीफाइड. Next question, the image obtained is inverted, equal in size and located at the point of center of curvature. Then the object is located at C. That means the object is located at center of curvature. जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तब जो उसकी इमेज है, इमेज ऑब्टेन होगी वो इन्वर्टेड होगी, इक्वल इन साइज होगी एंड located at the point of center of curvature होगी. Next, third question, the image obtained is inverted, bigger in size and located beyond the center of curvature. Then the object is located between C and F. Center of curvature and focus के between होगा, तब उसकी जो image है वो inverted होगी, bigger in size होगी and located beyond the center of curvature. Next question, the image obtained is inverted, smaller in size and in between center of curvature and focal point. जब obtain हमें obtain होगी inverted, smaller in size and in between center of curvature and focal, then object कहाँ पे होगा, the object is located beyond C. जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड C होगा, तब उसकी इमेज है इन्वर्टेड, स्मॉलर इन साइज एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन डैश. कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है, इन मिरर ऑफ व्हीकल्स. कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन मिरर ऑफ व्हीकल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच प्रिंसिपल एक्सिस टचेस द सरफेस ऑफ मिरर. जब वो वाला पॉइंट जब प्रिंसिपल एक्सिस सरफेस ऑफ मिरर को टच करता है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं. नेक्स्ट, डैश इज द बॉडी पार्ट दैट रियली सी द ऑब्जेक्ट. कौन सा बॉडी पार्ट है जो रियली ऑब्जेक्ट को सी करता है, दैट इज ब्रेन. ब्रेन इज द बॉडी पार्ट दैट रियली सी द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, क्योंकि आइज तो ओनली एड है. अगर आइज के थ्रू हम देख सकते हैं तो हम आइज तो एक एड है, ठीक है. एक्चुअली जो ऑब्जर्व करता है वो ब्रेन करता है. अगर आइज ही देखना का एक जरिया होती तो हम कहाँ पे देख सकते थे, हम अंधेरे में भी देख सकते थे. लेकिन जो आइज हैं पहले वो रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है, इमेज बनाती हैं. आफ्टर दैट ये मैसेज देते हैं ब्रेन को. जो ब्रेन है वो रियली ऑब्जेक्ट को सी करता है. नेक्स्ट, कन्वेक्स मिरर फॉर्म ओनली डैश इमेजेस. जो कन्वेक्स मिरर है वो ओनली वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, डैश परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू शो दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स which can be recombined to form white light. Sir Isaac Newton performed the experiment to show white light consists of 7 colors which can be recombined to form white light. Next, white light consists of dash color. White light 7 colors के बनी होती है. White light consists of 7 colors. So next, fill in the blanks. When white light separate into a band of 7 colors on screen, it is called spectrum. जब white light
स्प्लिट होती है 7 कलर के बैंड में, उसको बैंड को जब हम स्क्रीन पे लेते हैं उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। नेक्स्ट फिलअप, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। जिस इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं उसको हम रियल इमेज बोलते हैं। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जिस इमेज को हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते उसको हम वर्चुअल इमेज बोलेंगे। नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब वाइट लाइट स्प्लिट होगी 7 कलर्स में उसको हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट, लाइट दैट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बाउंस ऑफ इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ लाइट। ठीक है, जब लाइट है किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करेगी लेकिन फॉल करने के बाद बाउंस बैक होगी इन ऑल डायरेक्शंस, देन दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन ऑफ लाइट। नेक्स्ट, refraction is the phenomena which happens when a ray of light passes from one transparent medium to another। refraction एक phenomena है। कब होता है ये? जब a ray of light passes from one transparent medium to another। next, rainbow is the result of dispersion of light by the drops of water which act like prism। रेनबो क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, जब वाटर ड्रॉप्स के थ्रू लाइट डिस्पर्स होती है और जो वाटर ड्रॉप्स है वो एक्ट करती हैं जस्ट लाइक अ प्रिज्म। नेक्स्ट, रे डायग्राम इज हेल्पफुल टू नो द साइज, लोकेशन, ओरिएंटेशन एंड द टाइप ऑफ इमेज दैट इज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम हमें हेल्प करती है कि किसी भी इमेज का साइज कितना है, लोकेशन, ओरिएंटेशन एंड टाइप, ठीक है, फॉर्म्ड बाय द कनकेव मिरर। नेक्स्ट, फिलअप, कन्वेक्स मिरर कैन बी यूज्ड टू सी अ मच लार्जर एरिया देन द एरिया कवर्ड बाय अ प्लेन मिरर। कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं मच लार्जर एरिया को देखने के लिए एज कंपेयर टू अ एरिया कवर्ड बाय अ प्लेन मिरर। नेक्स्ट, फिलअप, a real image formed by a concave mirror can be captured on a screen। रियल इमेज है जो कनकेव मिरर के थ्रू बनती है उसको हम स्क्रीन पे कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द फर्स्ट, रिफ्रैक्शन कैन नॉट टेक्स प्लेस इन सेम मीडियम इफ द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर्स वेरी, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, व्हेन वी सी एन इमेज नॉट ओनली, ठीक है, वी कैन सी एन इमेज नॉट ओनली ऑन अ प्लेन सरफेस बट ऑल्सो ऑन अ कर्व सरफेस, इट्स ट्रू। हम इमेज को प्लेन सरफेस पे ही नहीं देख सकते, हम कर्व सरफेस पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, द आउटर सरफेस ऑफ स्पून इज नोन एज कनकेव सरफेस। जो आउटर सरफेस है स्पून का उसे हम कनकेव सरफेस के थ्रू नोन करते हैं, ठीक है, इट्स फॉल्स, क्योंकि जो इनर सरफेस होता है स्पून का दैट इज नोन एज कनकेव सरफेस। ठीक है, जो इनर है वो होता है कनकेव सरफेस, यहाँ पे आउटर लिखा है सो इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल पॉइंट्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट्स फॉल्स। जो पॉइंट, ठीक है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ना कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, if a image is not a real image then it is possible to project the image via convex mirror। ठीक है, अगर कोई इमेज रियल इमेज नहीं है तो उसे हम, ये पॉसिबल है कि उसे हम प्रोजेक्ट कर लें बाय अ कन्वेक्स मिरर, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, वर्चुअल इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन अ स्क्रीन, इट्स फॉल्स। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे, ठीक है, कैप्चर नहीं कर सकते। Next, the object is located between C and F when image is located at the focal point। यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे आप इमेज कर लो। जब ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन C एंड F रखेंगे तब उसकी जो इमेज है वो लोकेटेड होगी फोकल पॉइंट पे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
Next, irrespective to where the object is kept, the image will always be located behind the convex mirror, virtual and upright, and smaller in size. It's true. Next, ray diagram requires determining where the image of upper and lower end of the object is placed and then tracing the whole image. It's true. Doctor use convex mirror reflector to produce a parallel beam of light for examining body parts such as eyes, ears, nose and throat. It's false. Next, matchups. कॉलम 1 में गिवन है फर्स्ट वन कन्वेक्स मिरर, इसको मैच करेंगे हम विद कॉलम सेकंड. कन्वेक्स मिरर क्या होगा? मिरर विद आउटर कर्व सरफेस, जिसका आउटर कर्व सरफेस एरिया होगा उस मिरर को हम क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर. नेक्स्ट, कनकेव मिरर, मिरर विद इनर कर्व सरफेस. थर्ड, इनविजिबल एनर्जी किसको बोलते हैं हम? इनविजिबल एनर्जी इज लाइट. नेक्स्ट, स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? फोर्थ वन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, ये दोनों क्या है? स्फेरिकल मिरर. नेक्स्ट, प्रिज्म 1. प्रिज्म 1 क्या है? प्रिज्म 1 है डिस्पर्सिंग लाइट, ये प्रिज्म 1 है वो डिस्पर्स करती है लाइट को. एंड प्रिज्म 2 रिकम्बिनेशन प्रिज्म, जब वाइट लाइट स्प्लिट हो जाती है फर्स्ट प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्स हो जाती है, फिर उसकी रिकम्बिनेशन होती है सेकेंड प्रिज्म में. नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड एट एफ. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट एफ वे होगा देन नो इमेज विल बी फॉर्म. जब कोई ऑब्जेक्ट है फोकस पे होगा तो उसकी कोई इमेज नहीं बनेगी. नेक्स्ट, रियल इमेज. ठीक है, रियल इमेज क्या है? सिनेमा स्क्रीन, इसकी एग्जांपल क्या है? सिनेमा स्क्रीन. वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या है? आर इमेज इन अ प्लेन मिरर, जो हमारी इमेज बनती है प्लेन मिरर में वो इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज. नेक्स्ट, द नॉर्मल टू द सेंटर ऑफ मिरर, जो नॉर्मल सेंटर ऑफ मिरर पे होगा उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. सो विद दिस योर बुक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 that is light is completed. If you have any doubt regarding any ठीक है questions, then we will discuss in your online class. Thanks students, have a nice day.